माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Good morning, student. Myself Surendra Yadav, I am a physics teacher. Today, I would like to say something about very important topic of standard 12 subject physics, chapter number 1. This topic name is applications of Gauss law. Okay, so I have taught you before Gauss law, Gauss application of Gauss first law, second law, and third law. Today, I will teach you application of Gauss law. Topic number 4. Okay, so what is the Gauss law application of Gauss law 4? You can see the electric field intensity due to uniformly charged sphere. Today I want to determine the electric field on uniform charge sphere. Okay, so this is the fourth application of Gauss law. So you can see the figure. One sphere is there, which radius is capital R, and inside of the charge is the radius. Gaussian surface are there. This point you can say P dash, and radius from the center, this is R dash, and outer side of the cells, which radius I took, this is the R, small r, and point is P. So we want to find the electric field on both surface, inside of the sphere and outside of the sphere. So you can say, if we want to find the electric field of the Gaussian surface, we should know about the Gauss law. Okay, electric flux also. Okay, everyone know what is electric flux. Electric flux is mathematical calculation of the electric field and surface area. Okay, and here what I took, I have mentioned there. Okay, and then let rho be the volume density of the charged sphere having the radius r. You can see here, this is the radius r and shown in figure, and charge inside the sphere is capital Q naught, small q. Okay, plus charge. Now we want to find the charge of the cell. How we'll find? We know very well. क्या जानते हैं? We know that rho equal to total charge by total volume. So rho equal to charge is Q and volume is V. If we want to find the charge inside the sphere, Q equal to rho V. Do you know rho volume of sphere? What you can write? Volume of sphere V 4 पाई. हाँ बोलो, सही है. 4 पाई r स्क्वायर नहीं, क्यूब by 3. Okay, 4/3 pi r cube. This is the formula of वॉल्यूम ऑफ स्पेस. ओके, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, वॉल्यूम याद होना चाहिए, एरिया याद होनी चाहिए. ठीक है, तब ये वैल्यू यहाँ पे हम रखते हैं किसकी जगह पे? वॉल्यूम की जगह पे. तो हम क्या लिखेंगे? Q इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो. Suppose that this is the question number 1. अच्छा, इसमें स्मॉल आर क्यों नहीं लिया? आर डैश ले सकते थे, स्मॉल आर ले सकते थे, कैपिटल आर ही क्यों लिया? क्यों? हाँ बोलिए. अच्छा, स्फीयर की रेडियस है. वेरी गुड. क्योंकि हम जो चार्ज निकाल रहे हैं, इनसाइड ऑफ द स्फीयर निकाल रहे हैं, तो इसके अंदर कितने चार्ज है वो क्यों है, इसलिए हमने रेडियस क्या ली? कैपिटल आर ली. वेरी गुड. अब इन दिस वे वी वांट टू फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन outside of the surface and inside of the surface.
आउटसाइड और इनसाइड में हमें क्या वैल्यूज मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो निकालना है। जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। स्फीयर पे क्या वैल्यूज होगी इनसाइड और आउटसाइड। तो अगर हम लिखना भी तो पड़ेगा ना, ये जो हम बता रहे हैं, क्या लिखोगे, वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द स्फीयर and outside of the sphere, and you will consider this electric field is upward direction of the radially, मतलब ये रेडियस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, इनसाइड और आउटसाइड की वैल्यूज को हम गेट करेंगे। ओके, लिख डालिए, हैव यू रिटन? ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? For a point lying inside the sphere, suppose that this point is P dash, इस P dash पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि for point lying inside the sphere, ओके। क्या लिखेंगे? नंबर 1, for point lying inside the sphere। तो पहला पॉइंट ये कि फर्स्ट पॉइंट हम इस पे चर्चा करेंगे, फिर आउटसाइड की चर्चा करेंगे। हमें निकालना क्या है? निकालना क्या है? व्हाट वी वांट टू फाइंड? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ओके। तो let us consider radius of inside, radius of Gaussian sphere, inside the surface point on point P is R dash and charge is Q dash, ओके। सपोज दैट यहाँ पे ये Q डैश चार्ज यहाँ पे है, ओके। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? Q डैश क्या होगा? वी नो Q डैश इक्वल टू क्या होगा? 4/3 पाई R डैश Q इंटू रो। यही निकालेंगे ना, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो तो सेम ही होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये भी हमें देख सकते हो फिगर से, बाय फिगर वी कैन से कि R डैश इज लेस देन कैपिटल R। यहाँ पे ये वैल्यू R डैश है और ये वैल्यू R है स्फीयर की, क्योंकि R डैश किसकी वैल्यू है? OP डैश की वैल्यू है, मतलब सेंटर से P पॉइंट तक की रेडियस जो है वो R डैश है, लेकिन O से P डायरेक्शन में अगर यहाँ पे सरफेस की बात करें तो वो R है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड ऑफ द स्फीयर रेडियस R डैश ऑन पॉइंट P डैश, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आप इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो की वैल्यू क्या निकाला था? कितने लोगों को पता है? सबको पता है, रख दो फिर। तो Q डैश क्या होगा? 4/3 पाई R डैश इंटू क्या? रो की वैल्यू क्या आई थी? नहीं बताओगी? बोलिए। अरे क्यों निकाला था आपने? चलो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो साइड में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से दो।
आपने रो इक्वल टू क्यू बाई बी निकाला था, और ये वैल्यूज क्या थी, क्यू बाई बी की वैल्यू क्या थी 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो निकाला था भाई, यही तो रो है, वहां पे क्यू निकाल लिया था जबकि हमें रो ही चाहिए। तो रो की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, जो बच रहा है उसको मैं लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, ओके, तो अब हम लिखेंगे क्यू डैश, क्या आएगा आप ही बताइए, क्यू है और क्या बचा था आर डैश क्यूब बाई आर क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर क्या ले लें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये तो हमारा चार्ज क्यू डैश की वैल्यू आ गई, मतलब इस स्फीयर के लिए हमारी इसकी वैल्यूज आ गई। कौन सी स्फीयर, इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस। आप देखिए मेरे आर्क को कैसे मूव कर रहा है, ये गॉसियन डॉटेड लाइन से बनाया गया, ये क्यू डैश की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, इस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट या पी डैश पॉइंट पे। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, किसका हेल्प लेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब गॉस लॉ भी पता होना चाहिए, तो क्या है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डी ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, चार्ज में क्यू डैश होगा या क्यू होगा, हाँ सोच लो। अरे भाई गॉसियन सरफेस पे क्या है, क्यू डैश चार्ज है, तो यहाँ पे गलती मत करना, अगर यहाँ पे क्यू लिख दिया तब नहीं आएगा, क्योंकि इस सरफेस के लिए जो चार्ज आपने डिसाइड किया है वो क्यू डैश है। ओके, अब ये हमें निकालना है एरिया, किसकी एरिया निकालनी है, इसकी एरिया निकालनी है गॉसियन सरफेस की, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई इंटीग्रेशन एस डी ए को क्या लिखेंगे, डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड ही होगी, तो इसके बीच में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगी और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम क्या लिखेंगे, ई इंटीग्रेशन एस डी ए कॉस 0 इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ओके, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या आएगा ई ए, अगर ये 1 होता है और ये डी ए कॉम ए डैश ले लेते हैं, यहाँ की जो एरिया है वो ए डैश है, तो क्या हो जाएगा क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, इट्स क्लियर। अब हमें लिखना है एरिया ऑफ इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस। चलिए इसको रब करें, ठीक है। अब हम लिखेंगे, किसकी वैल्यू लिखेंगे, ए डैश की वैल्यू। ए डैश क्या है, एरिया ऑफ इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो क्या होता है एरिया ऑफ इनसाइड ऑफ गॉसियन सरफेस, ई वेक्टर, ई ए की वैल्यू क्या लिखेंगे 4 पाई आर डैश ना, डैश स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या है, अभी निकाला था हमने, क्या निकाला था, क्यू आर डैश क्यू बाई क्या था आर क्यू, और क्या बचेगा, ऐसे लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए बाई R3, ये निकाला था ना, अपॉन एप्सिलॉन। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ वैल्यूज कैंसिल हो रही है, आर डैश स्क्वायर ये क्यूब कैंसिल हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ई इक्वल टू 4 पाई को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश बाई आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी क्वेश्चन नंबर है 3 है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 पाई और एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है,
चार्ज क्यू हमारे स्फीयर के लिए वो भी फिक्स है। आर डैश क्या है, हमारी जो स्फीयर है उसकी रेडियस है, वो भी चेंज नहीं हो सकती। तो हम ये सारे वैल्यूज को क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट हो तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश। इसे क्या समझ में आता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश है, कहने का ये मतलब है सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो जीरो होगी, लेकिन वहां से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आर डैश बढ़ता जाएगा, कहां तक, आर तक, ये रेडियस तक, यहाँ तक, कहने का मतलब सेल के रेडियस तक, वहां तक ये इंक्रीमेंट होगा। When R dash will increase, then electric field will increase till कहां तक, R। इसके बाद की वैल्यूज बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर इसको देना है तो दो, नहीं तो चलेगा, ओके। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि R dash will increase till R from post center of the sphere, this will be increasing order, okay, and this R dash will increase, so electric intensity will also increases, okay। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस वैल्यूज पे Q की वैल्यूज अगर हम रखते हैं फ्रॉम इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q in इक्वेशन नंबर 3, वी गेट क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में मिलता है आपके सामने है। Q की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने निकाला था इक्वेशन नंबर 1 से। कितने लोगों को इक्वेशन नंबर 1 याद है अभी, 4/3 पाई r क्यूब रो होता है, ठीक है। लिखे तो यहाँ पे Q की जगह पे क्या लिखोगे, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो r डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 डाउनवर्ड ले लो तो E की वैल्यू क्या आएगी, बोलो। हाँ अभी लग रहा है कि आप लोग क्लास में हो, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या होगी, रो बचेगा, आर डैश होगा, रो आर डैश बाई क्या होगा, 3 एप्सिलॉन। ये इक्वेशन नंबर होगा 4। और यहाँ पे क्या होगा, R डैश इज लेस देन, ओके। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, किसकी बात करें, ये वैल्यू कहाँ तक बढ़ेगी, R तक। अगर हम R पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा। तो अब हम इसको रब करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। अभी तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने गेट किया, अब हम फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, मींस व्हाट, गॉसियन सरफेस आउटसाइड ऑफ द सरफेस। तो सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आई हैव गॉट, ओके। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2। नंबर 2 क्या है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहने का मतलब गॉसियन स्फीयर आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। और ये कौन सा स्फीयर है, देखिए ये बड़ा वाला जिसकी रेडियस क्या है, R है। इस पे हमें P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके। तो नाउ राइट डाउन फॉर पॉइंट आउटसाइड लाइन आउटसाइड ओके। तो ये हमारी वैल्यूज क्या है, फॉर द पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, P पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज है जो हमने बहुत माइन्यूट एरिया लिया है, DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, और इस पे चार्ज क्या है, Q ही होगा क्योंकि साइड ऑफ द सरफेस ये है। तो क्या लिखेंगे, गॉसियन रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, आउटसाइड गॉसियन स्फीयर
outside the surface is small r and charge is q. Okay, round figure. As soon as figure. Okay, now according to गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू डैश होगा कि क्यू होगा? क्यू इज देयर, ओनली क्यू, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है? क्यू है। और यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक बहुत माइन्यूट एरिया लिया है और जिसकी वैल्यूज डी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देख सकते हो कि बोथ डी ए एंड वेक्टर ई बोथ आर सेम डायरेक्शन, देन थीटा विल बी 0, तो cos 0 equal to 1. You will substitute these values. E will take outside integration dA cos 0 equal to q by epsilon naught. देख लिया? Have you written? Okay. अब हम इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे लिख सकते हैं e इंटीग्रेशन dA इंटू 1 इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा? इसकी वैल्यू 1 होगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? e, और dA की वैल्यू क्या है? एरिया ऑफ दिस होल अगर हम लेते हैं तो a ले सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं? इसकी वैल्यूज होगी 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगी ना। तो E क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब नॉट r स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू by r square। इस इक्वेशन नंबर जो है नेक्स्ट लिख लीजिए, r स्क्वायर ये हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि q की वैल्यू तो फिक्स ही है, तो हम क्या कह सकते हैं? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कहने का ये मतलब है जैसे जैसे वैल्यूज ये r विल इंक्रीज फ्रॉम द स्फीयर, इस स्फीयर से जितनी दूर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर है, और स्मॉल r क्या है? गॉसियन सरफेस विच इज आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये वैल्यूज r इक्वल टू r हो जाए, सपोज दैट अगर हम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 वी कैन गेट, क्या गेट कर सकते हैं? r इक्वल टू r। कहने का मतलब इफ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस, r स्मॉल r इक्वल टू r हो जाए तो वैल्यू क्या होगी? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। कहने का ये मतलब है कि अगर रेडियस r से बाहर जाती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और उससे अंदर आएगी तब क्या होगा? धीरे धीरे कम होगी, लेकिन वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड करेगी। ये इक्वेशन नंबर 6 है। और बाई 5 इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? q
Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, रो के फॉर्म में क्या वैल्यूज होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 नॉट 5, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q in equation number 5 we get, ओके, क्या लिखे, तो E इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन, Q की वैल्यू क्या थी 4/3 पाई R क्यूब बाई आर क्यूब था Q की वैल्यू, और इंटू रो अपॉन R, यही था ना। 5 इसको नहीं देना, ये 6 है, 5 में स्मॉल आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज कट जाएगी, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि रो बाई एप्सिलॉन R क्यूब बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि E is inversely proportional, in this way we can say। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा, एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे कि कब कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पे कम होती है, कब इंक्रीमेंट होता है इसका, कब डिक्रीमेंट होता है। तो ये फिगर के द्वारा आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, अब ये फिगर भी आपको फिगर देखना है, ये सारे फार्मूले भी आपको याद होंगे जो हमने आपको बताया अभी। अब हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये सही है। चलिए, ये हमारा एक ग्राफ है जो किसके बीच में है, आर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। यहाँ ओ है, यहाँ देख सकते हो कि सरफेस पे ये ए आर वैल्यूज है। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर में आप देखेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ई मैक्स और ये पॉइंट ई। तो आपने देखा है कि दो तरह के हमारे पास रिलेशन आए थे। एक क्या था, इस साइड के लिए E इक्वल टू आर डैश, जब E बढ़ेगा, जब R डैश बढ़ेगा, कहां तक R डैश बढ़ेगा, तो वहां पे आपने देखा है कि E की वैल्यू इस तरह से ग्राफ आएगा, R बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R डैश। कहने का मतलब मैक्सिमम कहां होगी, R। और दूसरा V इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली डिक्रीज होती जाएगी, जहां पे आप लिख सकते हो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इस फिगर के माध्यम से आपके समझ में आ गया होगा कि जो R डैश R के बराबर हो जाएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जैसा मैंने आपको लिख दिया है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, यहाँ से R बढ़ रही है, सीक्वेंसली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, लेकिन स्फीयर के बाहर जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है वो R स्क्वायर के इनवर्सली डिक्रीमेंट होती है, कम होती है। इस तरह से ये से क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसको ध्यान से समझिए और इसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे, ग्राफ से कैसे क्लियर होगा, कम होगा, इंक्रीमेंट होगा। जब आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको समझ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं, कहाँ पूछे जाते हैं, नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, IIT में भी आए हुए हैं। और नॉलेज लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं टोटली इसी पे डिपेंड होते हैं, थोड़ा नॉलेज दिमाग लगाइए। और MCQ में भी पूछे जाते हैं MCQ। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि ये ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आना भी चाहिए। तो आई थिंक आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो बाद में पूछ लेना, ओके। रिवाइज करना एक दो बार, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। Thank you for watching.